Start with the definition of chemistry. It is the branch of science which deals with the study of composition, structure, properties and energy changes of matter is called chemistry. So it has three branches: inorganic chemistry, organic chemistry and physical chemistry. So now I am going to discuss about the importance of chemistry in everyday life in various field. कि जो chemistry है उसकी क्या importance है हमारी daily life में. For example, medicines, in medicines, dyes, making of soap and detergents, food, cosmetics, etc. For example, AZD, azithromycin is a type of medicine which is used in for AIDS victims. Cisplatin and Taxol for cancer. Next application is transport and communication. For example, coal and petroleum are used in the transport and communication. These are the chemical products. So next one is nuclear or atomic energy, and last one is application in industries. So chemistry is the branch of science which deals with the study of composition, structure, property and energy changes of matter is called chemistry. So हमने किसकी स्टडी करनी है? मैटर की. So matter क्या होता है? What is matter? Anything in our surrounding which have mass and occupy space means volume is called matter. अब matter को हमने classify करना है in two ways: physical composition and chemical composition. In physical composition we will discuss about the states of matter physically. So first, solid, liquid and gaseous. These are the three states which exist at normal temperature, means we can say at room temperature. So first, solid. How we can define the solids? Those which have definite shape and volume are called solids. Definite shape and volume means we can define its shape and volume easily. In case of liquid, which do not have definite shape but they have definite volume, is called liquids. In case of gaseous, which do not have definite shape and do not have definite volume, is called the gaseous. There are two more physical state of matter. Fourth one is plasma and fifth one is BEC. So plasma, in which the particle are super excited and super energetic, means this state exists at very high temperature, or we can say at super temperature, in the form of ionized gases. For example, fluorescent tubes are the example of the plasma. BEC, Bose-Einstein condensate, conducted by एल्बर्ट आइंस्टाइन एंड सत्येंद्र नाथ बोस. ये इंडियन साइंटिस्ट थे. सो इन कंडेंसिंग गैसेज ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी मच लोअर टेम्परेचर, मीन्स ये कब होगी? ये होगी सुपर लो टेम्परेचर. फॉर एग्जांपल, सुपर कंडक्टर्स एंड सुपर फ्लूइड्स. दीज आर द स्टेट्स ऑफ मैटर. नेक्स्ट वन इज केमिकल कंपोजिशन. We can classify chemical composition into two ways: pure substances and impure substances, or we can say mixture. So let me start with pure substances. So they have substances, they have fixed composition, but in case of mixture they do not have fixed composition. So pure substances can be classified into elements and compounds. So first, elements having same kind of atoms, or we can say can't be decomposed into simpler substances. These are called elements. Compounds, they have different kinds of atom and can be decomposed by the chemical methods into constituent elements, are called compounds. So जो elements होते हैं वो three types से होते हैं: metals, non-metal and metalloids. metals क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इनकी प्रॉपर्टी हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, सो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. सो नॉन मेटल्स आर द इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर एंड दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. देन मेटलाइट्स, दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल्स. देन कंपाउंड्स, देर आर टू टाइप ऑफ कंपाउंड्स: inorganic compounds and organic compounds. Inorganic compounds which are obtained from non-living things are called inorganic compounds, and the organic compounds, we can say the compounds of hydrogen and carbons
means hydrocarbons and their derivatives are called organic compounds. Then mixture, two type of mixture, homogeneous and heterogeneous. Homogeneous mixture means the component having uniform composition throughout the solution is called homogeneous mixture. देखो homo stands for same, homo means same, और we can say uniform, so इनकी कंपोजिशन क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, किसकी, कंपोनेंट्स की, थ्रू आउट द सॉल्यूशन. हेट्रो मीन्स डिफरेंट, सो इनकी जो कंपोजिशन होगी वो क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सॉल्यूशंस. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ मिक्सचर. So let we start with measurement in chemistry. First, physical quantity. All such quantities which we come across during our scientific studies are called physical quantities. So it has two parts, number and units. So let me explain with the help of example. 4.5 kg. Here two physical quantity, 4.5 is the number and kg is the unit. So physical quantity we can explain in two parts, number and units. So let me explain units. It is defined as the standard of reference chosen to measure any physical quantity is called units. अब हमें पता है कि जो लेंथ है, मास है, टाइम है, एरिया, जनरली हम इनकी क्या करते हैं, इनके पीछे यूनिट लगाते हैं जब हम इनकी मेजरमेंट करते हैं. सो लेंथ की जो मेजरमेंट यूनिट है, फिजिकल क्वांटिटी है जो लेंथ, उसकी जो यूनिट है वो क्या है, मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम सेकेंड, एरिया मीटर स्क्वायर. हमें पता है डेसी किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻1, सेंटी 10⁻⁻2 एंड मिली 10⁻⁻3. ये हमें याद करनी है. माइक्रो होता है जैसे 10⁻�6. सो नेक्स्ट, वॉल्यूम. यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, लीटर, सेंटीमीटर क्यूब और सीसी मीन सेंटीमीटर क्यूब एंड डेसीमीटर क्यूब. सो ये वॉल्यूम है. अब इसकी इतनी सारी यूनिट्स हैं, इनमें हम इंटर कन्वर्जन कैसे करेंगे और हम कह सकते हैं कि इनके बीच रिलेशन क्या क्या है. सो हमें पता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर और वो किसके इक्वल है, 1000 सीसी. अब हमें पता है कि 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1000 सीसी. सो 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सीसी, वी कैन राइट हियर. अब ये सीसी को हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब, मीन्स सेंटी क्यूब मीटर क्यूब. सो इसको हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब. अब यहाँ इसमें हम सेंटी की वैल्यू पुट करते हैं. किसकी वैल्यू पुट करते हैं, सेंटी की. तो हम सीसी को क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेंटी की वैल्यू पुट करते हैं. सेंटी इज इक्वल टू 10⁻⁻2. सो सेंटी की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ, सेंटी यहाँ पे. सो 10⁻⁻2 की क्यूब एंड मीटर क्यूब. सो हियर 1 लीटर इज इक्वल टू, इसको मैं 10⁻3 लिख सकता हूँ इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब. सो हमारे पास आया 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻3 मीटर क्यूब. और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब. सो यहाँ से मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर. दिस इज द नेक्स्ट रिलेशन. अब यहाँ देखो 1 लीटर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10⁻⁻1 की पावर क्यूब लिख सकता हूँ इंटू मीटर क्यूब. अब 10⁻⁻1 क्या होता है, डेसी. सो मैं यहाँ डेसी लिख लेता हूँ. तो 1 लीटर इज इक्वल टू डेसीमीटर क्यूब. सो नाउ द यूनिट ऑफ प्रेशर, एटमॉस्फेयर, बार, टोर, mm of Hg means millimeter of Hg, centimeter of Hg. Hg stands for mercury and Pascal. We know pressure is equal to force per unit area. So unit of force is Newton and area मीटर स्क्वायर. सो हमें पता है कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 पास्कल के इक्वल होता है. फिजिक्स में हम ये पढ़ते हैं. सो P इज इक्वल टू F/A. F क्या है, फोर्स. फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन. एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर. सो मास की यूनिट ली हमने किलोग्राम, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड एरिया मीटर स्क्वायर. सो यहाँ से हमारी जो यूनिट आई है किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर. अब जो कंसेप्ट केमिस्ट्री में जो प्रेशर मापते हैं हम वो जनरली एटमॉस्फेयर में मापते हैं. सो 1 एटमॉस्फेयर होता है इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल. अब ये जो रिलेशन ये हमने याद करना है. देखो इसके लिए एक ट्रिक है.
देखो यहाँ पे क्या है, 1 हम एज इट इज़ लिख देते हैं। ए किस जैसा है, 0 जैसा है, तो 0 लिख दी। टी कैसा है, 1 जैसा है। अब ये जो m है, अगर इसको मैं थोड़ा सा टर्न कर देता हूँ ऐसे, तो उसका क्या बन जाता है, 3 × 10⁵ पास्कल। अब जो 1 बार होता है वो इक्वल टू होता है 10⁵ पास्कल, मीन्स 10⁵ पास्कल होता है। तो यहाँ 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू, यहाँ इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह बार लिख सकते हैं भाई। 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल, तो ये क्या हो गया हमारा 1 बार। सो 1 एटमॉस्फेयर किसके इक्वल आ गया, 1.013 बार। सो ये किसके नियरली इक्वल है, 1 के। सो वी कैन राइट 1 एटमॉस्फेयर इज नियरली इक्वल टू 1 bar. The next unit in case of mm of Hg, 1 atmosphere is equal to 760 mm of mercury. इन केस ऑफ सेंटीमीटर जब हम इसका यूनिट कन्वर्जन करते हैं तो ये आता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। इन केस ऑफ टॉर, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 टॉर। सो दीज आर द रिलेशन बिटवीन द यूनिट ऑफ द प्रेशर। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 × 10⁵ पास्कल इज इक्वल टू 1.013 बार इज इक्वल टू 101.3। अब इसको देखो, ये पॉइंट हम उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, किलो, मीन्स 10⁻³ से हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ उसका हमने क्या लिख दिया, किलो इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर Hg इज इक्वल टू 760 टॉर। सो दीज आर द रिलेशन बिटवीन द यूनिट्स ऑफ द प्रेशर. Now the unit of temperature. So there are 3 unit of temperature, K, Kelvin, degree Celsius and degree Fahrenheit. So इनके बीच रिलेशन क्या है, K इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 और डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू K माइनस 273। जैसे हम यहाँ कोई टेम्परेचर लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में वो कितना होगा, यहाँ पे हम 273 ऐड कर देंगे तो कितना हुआ 298 केल्विन। और फ़ारेनहाइट में हम सेम टेम्परेचर पे लेते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 77। सो ये वैल्यू आती है हमारी डिग्री सेंटीग्रेड में, केल्विन में और फ़ारेनहाइट में। इस टेम्परेचर को बोलते हैं हम रूम टेम्परेचर।